students. I am Sushma Dikshit from Inter College, Muzaffarnagar. Today I am going to teach you the lesson 2 from high school syllabus, A Letter to God. First of all, I'll tell you lecture at glance. First of all, I'll tell you about the author and about the lesson. And after this, I'll I'll read and explain the text, and then I'll give you comprehension questions to test your knowledge, and at last I'll give you home assignment. The author G.L. Funes was a Mexican writer, and he was a wonderful storyteller, and he was not only a storyteller but a poet also. Most of his stories are funny and famous. The story A Letter to God is also the example of this kind. This is the story of a hardworking farmer, Lencho. Lencho lived in a house which was situated on the top of a hill. There was only one house there, and at that year there was a good crop, but unfortunately hailstorm and heavy rain happened. So due to this heavy rain and due to hailstorm, his whole crop was totally destroyed, and he became very sad. He thought of writing a letter to God because he had deep faith in God, and he thought that God will help him. So he wrote a letter and dropped it into the mailbox, and when the post office employee saw the letter, they were very surprised, and they thought that it was they did not see such kind of letter in their life, but they were very good person, and they decided to help the farmer Lencho. So they collected money, but it was less than what the farmer demanded. It was only 70 pesos, while the farmer Lencho asked them to send 100 pesos. So he called them a bunch of crooks, meaning dishonest person. So today we'll start. Before starting the story, I want to tell you that this story is very lengthy, so I will complete it in 2 parts, and today I'll complete only part 1. Letter to God. I'm starting the story. I'll explain the story in both languages, Hindi and English. Let's start the text. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house केवल एक घर था, the only one, केवल एकमात्र, संपूर्ण घाटी में, जो कि नीची पहाड़ी की चोटी पर था. From the height, one could see the river, और इस ऊंचाई से कोई भी इस नदी को देख सकता था. उस घर के सामने नदी बह रही थी, and the field of ripe corn, और पके हुए अनाज के खेत, dotted with the flowers, जिन पर फूल लगे थे, that always promised a good harvest, जो एक हमेशा अच्छी फसल देने का वायदा करते थे. It means जो प्लांट्स थे उन पर फूल खिले हुए थे, और इसका मतलब है कि जो उस समय फसल थी वो पूरी ब्लूमिंग पे थी, फल फूल रही थी. The only thing, और एक ही बात थी, the earth needed was a downpour or at least a shower, और जमीन को जरूरत थी तेज बारिश की, heavy rain की, और कम से कम हल्की बरसात की. Throughout the morning, पूरी सुबह, Lencho, who knew his fields intimately, जो अपने खेतों को गहराई से जानता था, घनिष्ठता से जानता था, had done nothing, उसने कुछ भी नहीं किया, but see the sky, आकाश को देखा, towards the northeast, उत्तर पूरब की तरफ. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में राइटर बता रहे हैं कि कहाँ पर ये लेंचो रहता था और वो क्या करता था. लेंचो was a
farmer and his crop was very good at that year, and there was only one house in the whole valley. Now we are really going to get some water, woman. अब हम कुछ पानी हमें मिलने जा रहा है, अपनी वाइफ से कहता है वो। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाई, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, जैसी ईश्वर की इच्छा। ये लाइनें हमें बताती हैं कि बोथ ऑफ देम बिलीव्ड इन गॉड, दे हैड डीप फेथ इन गॉड। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उनके बच्चे थे, जो उनके बड़े लड़के थे, वो काम कर रहे थे खेतों में। While the smaller ones, जबकि छोटे बच्चे were playing, खेल रहे थे बाहर, outside the house, घर के बाहर, until the woman called to them all, जब तक कि उस औरत ने, मीनिंग उन लोग बच्चों की मदर ने उन्हें बुलाया, come for dinner, और आओ भोजन के लिए आओ। During the meal, that just as Lencho had predicted, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, predicted, forecast, big drops of rain begin to fall, और बड़ी-बड़ी बूंदें बारिश की पड़ने लगी। In the northeast, उत्तर पूरब की तरफ से, huge mountains of clouds could be seen approaching. Huge, very big, बहुत बड़े-बड़े mountains of clouds, बादलों के पर्वत, मीनिंग बहुत बड़े-बड़े बादल, could be seen approaching, आते हुए देखे जा सकते थे। The air was fresh and sweet, हवा बहुत ताजी और मधुर थी। The man went out for no other reason, और वह व्यक्ति बाहर चला गया without any reason than to have the pleasure of feeling the rain on the body, और वह केवल बारिश की फीलिंग को, बारिश को फील करने के लिए अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर बारिश की को महसूस करने के लिए बाहर चला गया। And when he returned, he exclaimed, और जब वह वापस लौटा तो उसने कहा, These are not raindrops, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, falling from the sky, आकाश से गिरती हुई, they are new coins, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces, बड़ी जो बूंदें हैं 10 पैसे के सिक्के के बराबर हैं, and the little one are 5, और छोटी बूंदें 5 पैसे के सिक्के के समान हैं। क्यों उसने सिक्के कहा इनको? Because इन बूंदों को उसने पैसे इसलिए कहा कि बारिश पड़ेगी, उसके फसल अच्छी पैदा होगी, क्योंकि जमीन को बारिश की जरूरत थी, पानी की जरूरत थी, और इससे वो अपने अनाज को बेचकर पैसा कमा लेगा। तो इसीलिए इन बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को पानी की 10 पैसे के सिक्के कहा, और छोटी वाली बूंदों को 5 पैसे के सिक्के कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, संतुष्टि के भाव के साथ उसने सोचा अपने अनाज के खेत को फूलों से भरे हुए, कि अच्छी फसल पैदा होगी क्योंकि बारिश आ रही है। इसी ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप्ड कवर्ड हो गई, ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के कर्टेन, पर्दा सा पड़ गया, बारिश पूरी बारिश हुई तो ऐसा लगा जैसे उसका खेत पूरी तरह से किसी कपड़े से ढक गया हो, व्हाइट कलर। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ ही, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। These truly resemble new silver coins, और ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। It means they were white color. The boys exposing themselves, बच्चे अपने को दिखाते हुए, to the rain, बारिश में, ran out to collect the frozen pearls, वो बाहर दौड़े इकट्ठा करने के लिए जमे हुए मोतियों को। Frozen pearls meaning hail stones, ओले पड़ते हैं, आपने देखा होगा, तेज बारिश होती है, कभी कभी ओले पड़ जाते हैं, जो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी खेती के लिए भी और हमारे लिए भी। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ओले पड़ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में ओले हैं यहाँ पर। और फिर वो कहने लगा, बहुत दुखी हुआ जब वो देखकर इन ओलों को, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में बहुत बुरा होने जा रहा है, एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने कहा। इस व्यक्ति ने कहा, लेंचो ने। आई होप, और मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी से ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, और यह जल्दी से नहीं गुजरा, ये खत्म नहीं हुआ बारिश और ओले पड़ना। फॉर एन आवर द हेल
rained on the house. 1 घंटे तक ओले बरसते रहे घर पर. The garden खेत में, the hillside पहाड़ी पर, the cornfield अनाज के खेतों में, on the whole valley संपूर्ण वैली में, everywhere there was a storm. And कैसा storm था? Hail storm. ओले पड़ रहे थे हर जगह. The field was white as if covered with salt. और जो खेत था वो सफेद हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि ओले पड़ रहे थे और ओलों का कलर आप जानते हैं सफेद होता है. As if covered with salt, मानो वो salt नमक से ढका हुआ हो. Not a leaf remained on the trees. एक पत्ती भी पेड़ पर नहीं रही. The corn was totally destroyed. और जो अनाज था वो पूरी तरह से destroyed हो गया, ruined हो गया, बर्बाद हो गया. The flowers were gone from the plants. और फूल भी बिल्कुल चले गए plants पौधों से. Lencho's soul was filled with sadness. और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई. He became very sad at this. When the storm had passed. और जब ये तूफान गुजर गया तो he stood in the middle of the field. वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ and said to his sons. अपने बेटों से कहा. In this paragraph, the writer describes the bad effect of hailstorms. हेलस्टॉर्म ने क्या किया? उसके पूरे खेत को, फसल को बर्बाद कर दिया. और there was nothing there, so he was very sad and he said to his sons. वो अपने बेटों से क्या कहता है? A plague of locusts, locust टिड्ढियों का दल, एक ग्रीन कलर इंसेक्ट होता है. अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would have left more than this. A plague of locusts, टिड्ढियों के दल का आक्रमण भी would have left more than this, इससे ज्यादा छोड़ देता. आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का एक इंसेक्ट होता है टिड्ढी. और टिड्ढियां जो है वो खेतों को तुरंत बर्बाद कर देती हैं. इसी तरह से उसने देखा कि टिड्ढियों के दल, मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि टिड्ढियों के दल ने उसकी जमीन को, उसके खेतों को बर्बाद कर दिया, लेकिन वो कहता है कि टिड्ढियों का दल भी इतना नुकसान ना करता जितना कि उसके बारिश के और ओलों के प्रभाव ने किया. The hail has left nothing. ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा. This year will have no corn. इस साल हमें बिल्कुल भी फसल नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी अनाज नहीं मिलेगा. That night was a sorrowful one. और वह रात दुख से भरी रात थी. All our work for nothing. हमारा इतना सारा कार्य और हमें मिला कुछ नहीं. There is no one who can help us. कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है. We'll all go hungry this year. इस साल हम बिल्कुल भूखों मर जाएंगे. बहुत दुखी था वो इस समय. तो now I'm giving you some comprehension questions and I'm telling you the Hindi of these questions also, and you will write these questions answer in your copies, notebooks. आप नोट करेंगे इन्हें. What did Lencho hope for? लेंचो को कैसी आशा थी? क्या आशा थी लेंचो को? उसे आशा थी कि बारिश होगी और बारिश हुई भी, लेकिन उसके बाद ओले पड़ने लगे और ओलों ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया. लेकिन इस क्वेश्चन में राइटर कहता है कि लेंचो को क्या आशा थी? लेंचो किस चीज की आशा कर रहा था? उसे आशा थी कि अच्छी बारिश हो और उसकी फसल को, उसके खेतों को पानी की बहुत जरूरत थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did Lencho say? लेंचो ने क्यों कहा The raindrops were like new coins? नए सिक्के क्यों कहा? I already told you. मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो नई कॉइन्स हैं, क्यों कहा उन्हें? क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ेंगी, बारिश की बहुत जरूरत थी खेतों को, खेतों में फसल अच्छी होगी और जब फसल अच्छी होगी तो उसे मार्केट में सेल करेगा और उससे उसे पैसा मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश कैसे बदल गई, मीनिंग कैसे परिवर्तन आया बहुत बड़ा? आपको पता है क्या हुआ था? बारिश के साथ साथ begin to rain hailstones. What happened to Lencho's fields? और क्या हुआ लेंचो के खेतों के साथ? क्या हुआ था? Its effect was very bad. The whole crop was destroyed by this. What were Lencho's feelings? ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन. What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब ओले पड़ने बंद हुए तो लेंचो की फीलिंग्स क्या थी? He became very sad. बहुत दुखी हुआ और उसने कहा कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है और अब हम क्या खाएंगे?
लेसन आधा मैंने कंप्लीट कर दिया है और आपको ये जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस दिए हैं आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। अब आगे का लेसन जो रिमेनिंग लेसन है वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको लेसन अच्छे से समझ आया होगा और अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई आपको डिफिकल्टीज में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।